Hello friends, welcome in RBC Online. I am Dattatreya Raut. I have to deliver the new aspect in the human health and diseases that is known as the this very important point that is known as the dengue fever. Dengue fever is the very important point as per the examination point of view of the NEET and CAT also. So in the dengue fever, what are the dengue fever? What is the symptoms of the dengue fever? How to there is a transmission of the dengue fevers, and what are the diagnosis and what type of the test are they allowed to diagnosis of the dengue fever, and prevention and the treatment is in this regard. These are the content of the dengue fever. So let us start the discussion about the dengue fever. So dengue fever is the, what means by the dengue fever? What is a dengue? I am to talk about the very details about regards to the dengue. Dengue fever, commonly known as the brick bone fever, उसे brick bone fever भी कहा जाता है, is a flu-like illness caused by the dengue virus. ये जो डेंगू फीवर होता है, ये डेंगू फीवर डेंगू वायरस के बाइट के कारण that will be a cause that will be enter into the healthy persons. These are the dengue virus is the present in the mosquito, which is the vector which is the that vector is known as the, it is caused when the Aedes mosquito carrying the virus, this mosquito bite healthy persons, then the such type of the dengue viruses are enters into the healthy person's body blood stream and cause the infection of the dengue fever. This dengue fever just like to the flu-like illness. Just what is the symptoms of the flu-like illness? Just like to the flu, headache, fever, then goes to the fattings. These are the common symptoms of the flu-like illness. So these are the same symptoms regards to the dengue fever. So that dengue fever is the cause when Aedes mosquito carrying the virus. These mosquito are the carrying the virus and bite a healthy person, and the infection is the take place. So this disease is mainly found in the tropical and subtropical regions of the world. As per the recommended by the announcement by the World Health Organization, this disease is mainly found in the tropical and subtropical regions of the world. So in the tropical and subtropical region of the world, why are they causing the such type of the diseases? Because of that there is a tropical and subtropical region, there is a growth of the such type of the mosquitoes and causing the such type of the diseases. These are the Aedes mosquito. So in the dengue fever, which is the commonly known as the brick bone fever, उसे brick bone fever भी कहा जाता है, और इस प्रकार से उसका जो स्प्रेडिंग होता है मोस्टली कॉमन इन दी मोस्टली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ दिस डेंगू फीवर which is the how to the there is a life cycle of the Aedes mosquito of the dengue
viruses. So when this life cycle of the Aedes mosquito, this mosquito which is the spread the eggs, and these eggs are goes to the larvae, and larvae goes to the form the pupae, and then 1 to 2 days after there is a formation of the adult Aedes mosquito. स्टैग्नेंट वाटर में इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल ऑफ द एडीज मस्कीटो जो है, इस प्रकार से उसका लाइफ साइकिल होता है. एडीज मस्कीटो जो भी है उसके दैट विल बी स्प्रेड द एग्स. नाउ दिस एग्स गोज टू द लार्वी, एंड द लार्वी फॉर्म द pupae, and then after the 1 to 2 days, the life cycle of the Aedes mosquito goes to the formation of the adult mosquito. Then in this regards to the causes of the dengue, डेंगू किस प्रकार से कॉज होता है, किस प्रकार से उसका इन्फेक्शन कॉज होता है, तो इसे हम विस्तृत स्वरूप से पढ़ते हुए, डेंगू इज कॉज्ड ड्यू टू दी 4 viruses, namely which is the known as the DENV1, DENV second, DENV third and DENV4. इस प्रकार से 4 types of the viruses which are the cause the dengue fever. So dengue which is the caused by the such type of the viruses. Now the virus enters the mosquito body. मस्कीटो के बॉडी के अंदर जब वायरसेस इंटर करता है, when it bites a already infected person, मस्कीटो, ये जो मस्कीटो होता है इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करता है, तो बाइट के समय दैट विल बी सक द ब्लड. इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के में का जो ब्लड है वो सकिंग करता है. ये सच टाइप ऑफ द मस्कीटो. मस्कीटो के बॉडी में ये वायरस किस प्रकार से प्रवेश करता है, तो मस्कीटो व्हेन आर बाइट्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन एंड देन इल इज अ स्प्रेड. व्हेन इट बाइट्स, जब इस प्रकार से वो मस्कीटो इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी का ब्लड सक करता है, तो उसके बॉडी में वायरस का इंटर होता है मस्कीटो के बॉडी में. देन द इलनेस इज स्प्रेड व्हेन इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन. वो मस्कीटो जब हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, एंड द वायरस इज स्प्रेड थ्रू द पर्सन्स ब्लड स्ट्रीम. पर्सन के ब्लड स्ट्रीम से उसका स्प्रेडिंग होता है. इस प्रकार से देयर इज अ कॉज ऑफ द डेंगू फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन वाया द एडीज मस्कीटो. Then these Aedes mosquito which are the responsible to cause the infection. Once a person recovers, अगर कोई पर्सन को डेंगू फीवर होता है, अगर वो रिकवर होता है, once a person recover, he is immune to the specific viruses. हमने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस के प्रारंभ में, इनिशियल पॉइंट में इम्यूनो सिस्टम को हमने पढ़ा है. ही इज हैव अ इम्यूनो टू द स्पेसिफिक वायरसेस एंड नॉट द अदर 3 टाइप्स. एक ही प्रकार के वायरसेस को वो क्या करता है, इम्यूनो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को अडैप्ट करता है. वहाँ पे वो उसको इम्यूनो रिस्पॉन्स की मेमोरी दैट विल बी अ टेक. The probability of the developing a severe and dengue fever, also known as the dengue hemorrhage. Dengue hemorrhage fever is a severe probability of the developing a severe dengue fever, also known as the dengue hemorrhage fever. Increase if
you are infected a second and third of the fourth time, or first, second time, third time and fourth time. In this way, that will be have the immuno response to a specific viruses only one. So in regards to the cause of the डेंगू किस प्रकार से कॉज होता है? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन को मस्कीटो बाइट करता है तो वो इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में का वायरस कहाँ पे जाता है? वो चला जाता है मस्कीटो के बॉडी में. जब मस्कीटो अनदर हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसको क्या करता है? उस हेल्दी पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में उस वायरस को रिलीज करवाता है. रिलीज करने के बाद वो हेल्दी पर्सन दैट विल बी सफर फ्रॉम द डेंगू फीवर. जब कोई डेंगू फीवर का पेशेंट को रिकवर होता है तो दैट ही हैज इम्यूनो टू द स्पेसिफिक वायरसेस, नॉट द अदर 3 टाइप्स. मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि डेंगू जो होते हैं 4 प्रकार के वायरसेस होते हैं. दिस आर दी DNV, दैट विल बी DENV, दैट विल बी डेंगू वायरसेस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. तो जिस प्रकार का वायरस ने कॉज किया है उसी प्रकार की इम्यूनो टू द स्पेसिफिक वायरसेस. Increase if you are infected second, third and fourth time, that will be infection is caused to the second times, third times and fourth time. That will be recovers, then have a immuno response, immuno to the specific viruses. इस प्रकार से causes of dengue fever. इन द कॉजेस ऑफ द डेंगू फीवर, जब भी डेंगू फीवर का कॉज होता है तो दैट विल बी इन्फेक्टेड पर्सन को इसका सिम्टम्स दिखने लगते हैं. व्हाट आर द सिम्टम्स इज, व्हाट आर द स्प्रेडिंग, व्हाट आर द ट्रांसमिशन ऑफ द सच टाइप ऑफ द डेंगू फीवर. डेंगू फीवर का जो भी उसका स्प्रेडिंग होता है, डेंगू फीवर जो स्प्रेड होता है, हमने आपको बताया इसके पहले स्लाइड में. हम विस्तृत स्वरूप से इस स्लाइड में हम भी अभी ये जो दिख रहा है पेशेंट है, द पेशेंट्स एडिस इजिप्टो मस्कीटो टेक्स अ ब्लड फ्रॉम द पेशेंट. डेंगू फीवर का पेशेंट होता है, उसके ब्लड को सक करता है. देन जो डेंगू वायरसेस दैट विल बी इन द एडिस मस्कीटो ट्रांसमिट वायरस इन अ सलाइवा में वो मस्कीटो के सलाइवा में चले जाता है. दैट विल बी ह्यूमन्स, देन बाइट टू द सच टाइप ऑफ द मस्कीटो, देन वायरसेस आर गोज टू द हेल्दी पर्सन एंड वायरसेस मल्टीप्ली एंड इन्फेक्ट. वायरस वहाँ पे मल्टीप्ली होता है और इन्फेक्ट करवाता है. देन इन्फेक्ट द WBC एंड लिम्फेटिक टिश्यू. लिम्फेटिक टिश्यू को WBC को इन्फेक्टेड करवाता है. मस्कीटो बाइट्स एंड टेक अ वायरसेस इन द ब्लड. वहाँ से वो व्हेन मस्कीटो आर बाइट टू द पेशेंट, देन टेक अवे द मस्कीटो बाइट्स एंड टेक्स अ वायरसेस इन द ब्लड्स. इन दिस वे डेंगू फीवर आर द स्प्रेड from patient to the healthy person, and healthy person that will be infected to the dengue fever, and dengue fever then again goes to the healthy person. Dengue fever are the spread in this way, so that in the spreading of the dengue fever is the infected person to the healthy person. हम इस स्लाइड को भी पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में लेते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं. नाउ देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ द डेंगू फीवर्स, डेंगू. नाउ हियर these are the infected persons which are sitting on this sofa set or the chairs. Then infected mosquito goes to the healthy persons and bite. Then incubation period is the 3 to 14 days, most commonly 4 to 7 days.
जब इन्फेक्टेड मस्कीटो हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरसेस इन द इन्फेक्टेड पर्सन्स, then incubation period is the 3 to 14 days commonly and most commonly 4 to 7 days. इस प्रकार से उसका इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन को होता है. Then this infection, when are the cause? Then what are the symptoms which are the essential to study about the symptoms of the dengue? डेंगू फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं उसे हमें विस्तृत स्वरूप से पढ़ना चाहिए. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डेंगू फीवर? डेंगू फीवर के जो सिम्टम्स हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं. यूजुअली सिम्टम्स ऑफ डेंगू फील लाइक अ अनकम्प्लीटेड फीवर एंड नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल इन टीन्स एंड द चिल्ड्रेन्स. क्या मीनिंग होता है? चिल्ड्रेन्स में एंड टीन्स में जब इसका इन्फेक्शन कॉज होता है तो यूजुअली सिम्टम्स ऑफ डेंगू फील लाइक अ अनकॉम्प्लिकेटेड फीवर एंड नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल्स, दैट विल बी आइडेंटिफाइबल्स. इजीली उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है. डेंगू कॉज अ फीवर ऑफ 104 फैराडेज डिग्री टेम्परेचर्स. उसका जो बुखार है 104 फैराडे के तक पहुंच जाता है. along with the list 2 of the these symptoms, there are the in details to the symptoms, that is the one is the headache. जब भी उसका इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद जब देयर विल बी अपीयर द सिम्टम्स हेडेक, सर का दुखना चालू हो जाता है, सर में दर्द होना चालू हो जाता है, इज अ हेडेक. देन दैट विल बी नेक्स्ट वन इज द मसल एंड बोन एंड जॉइंट पेन को उसका भी महसूस होने लगता है. मसल पेन को महसूस होने लगता है, बोन में पेन होने लगता है, जॉइंट में पेन होने लगता है. हेडेक, पूरी बॉडी पेन से भरी होती है. पेन यानी कि वेदना होता है. इस प्रकार से मसल, बोन, जॉइंट पेन्स, हेडेक, these are the initial symptoms of the dengue fever. डेंगू फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं, then nausea is the another symptoms of the dengue fevers. Then that will be vomiting is also the cause symptoms of dengue fever. Then उसका भी यहाँ पर हम पेन बिहाइंड द आईज, पेन बिहाइंड द आईज, आँखों के जो part of this eyes, behind the eyes there is a pain behind the eyes. आँखों के पीछे यानी कि आँखों का जो पिछला भाग जो है वहाँ पे पेन होने लगते हैं, वहाँ पे दर्द महसूस होने लगता है, वहाँ पे देयर इज वेदना होने लगती है. स्वोलन ग्लैंड्स, ग्लैंड जो होते हैं स्वोलन द ग्लैंड्स, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स आर द स्वोलेंस. स्वोलन द ग्लैंड्स, ग्लैंड जो होते हैं वो स्वेलन होने लगते हैं, उसको उस पर सूजन आने लगती है. और दैट विल बी देन गोज टू द रैशेस सीन ऑन द स्किन. स्किन पर, त्वचा पर रैश को पिंक कलर के रैशेस वहाँ पर दिखने लगते हैं. इस प्रकार से जो भी सिम्टम्स हमने यहाँ पर चर्चा करते हुए हम इसको पढ़ रहे हैं, हेडेक है, मसल पेन है, बॉडी पेन है, बोन पेन्स है, जॉइंट पेन्स है, मसल्स है, नौसिया है, वोमिटिंग है, पेन बिहाइंड द आइज है, सोलेंट ग्लैंड्स है, रैश है, रैशेस which are the appear on the skin,
इस प्रकार से जो सिम्टम्स ऑफ द डेंगू फीवर में हमें दिखने लगते हैं, डेंगू फीवर में हमें पेशेंट के अंदर इस प्रकार से वो सिम्टम्स का दिखना चालू होता है आफ्टर द इन्फेक्शन। 4 to 7 days इन्फेक्शन होने के बाद, नियर अबाउट आफ्टर दी 7 days, 7 दिन के बाद इनका इंक्यूबेशन पीरियड, आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, जब भी वायरसेस के जो मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पे जो उनकी संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ने के कारण उनका इन्फेक्शन स्प्रेड बॉडी में होने लगता है, ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से हर बॉडी के पार्ट में उसका इन्फेक्शन स्टार्ट होने लगता है। दैट विल बी अपीयर द सच टाइप ऑफ द सिम्टम्स आफ्टर द इन्फेक्शन गोज टू द स्प्रेड टोटली whole body, entire body of the patients, then spread the such type of the viruses, dengue viruses are the spread. Now in this dengue viruses there is a signals that will be goes to the by the doctors, that will be when are the symptoms of the dengue which goes to the in a severe cases, so that these symptoms is very carefully to understand, to identification of the dengue fevers, so that there is essential to study about all the students to remember the such type of the symptoms of the dengue fever. In the question may be asked in the board examination and also in the NEET examination, so carefully about that to study about the symptoms of the dengue fever. तो हम इस प्रकार से डेंगू फीवर के सिम्टम्स के बारे में विस्तृत स्वरूप से जानकारी प्राप्त करने के बाद हम इसको आगे बढ़ते हुए इसका डायग्नोसिस किस प्रकार से होता है। डायग्नोसिस होना यानी कि उसका निदान होना बहुत जरूरी होता है। निदान होने के बाद देयर इज doctors are providing the line of the treatment to cure the diagnosis fever, so that what are the diagnosis and diagnosis how to takes direct detection of the viral components, वायरल कंपोनेंट्स को डायरेक्टली डिटेक्ट किया जाता है, एंड दैट विल बी implement to advise the test. That test is known as the RT-PCR test. This real time polymerase chain reaction, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, रियल टाइम PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, उसका जो वायरसेस का DNA डिटेक्ट होता है, वहाँ पे RNA उसका डिटेक्ट होता है, इसके माध्यम से RT-PCR, these are the test to diagnosis of the infection of the viruses. So direct detection of the viral components and RT-PCR, real time polymerase chain reaction. Then doctors are advised another test that is known as the NS first AG, detection by the ELISA or the lateral flow rapid test. ELISA or the lateral flow rapid test is also recommended by the doctor and advised by the doctor when patients are suffer from the such type of the symptoms. When doctors are the take a history from the patients, patient are the tell about the symptoms, कब से ये symptoms उन्हें महसूस होने लगते हैं, तो डॉक्टर आर आस्किंग द क्वेश्चंस, फीवर कब से आता है, हेडेक कब से होता है, वोमिटिंग कब से होने लगती है। इस प्रकार से हिस्ट्री लेने के बाद देयर इज गोस टू द प्राइमरी डायग्नोसिस, देयर इज टू सजेस्ट द RT-PCR, to suggest the NS1 or that is known as the NS first AG, detection by the ELISA or the lateral flow rapid test. lateral flow rapid test को भी यहाँ पे दिया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो है RT-PCR जो किट है यहाँ पर हमें दिखाई देने लगती है, हम पिक्चर में देख सकते हैं।
RT-PCR टेस्ट जो किट होती है इस प्रकार से होती है। डायग्नोसिस टेस्ट करना बहुत जरूरी होती है, डेंगू टेस्ट को डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से हम देन गोज टू दी NS First AG का जो भी किट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस आर दी नेक्स्ट किट दैट इज नोन एज दी NS First AG डिटेक्शन बाय दी इलियासा और दी लैटरल फ्लो रैपिड टेस्ट। लैटरल फ्लो रैपिड टेस्ट इस प्रकार से डायग्नोसिस किया जाता है। देन दिस डायग्नोसिस इज एसेंशियल टू गोज टू दी प्रॉपर डायग्नोसिस and then providing the proper treatment to cure the dengue fevers. So in the diagnosis is take a blood Seamer's blood, that is a serum test that will be goes to the to diagnosis the by the RT-PCR test. Then in this way diagnosis is completed. Then after goes to the what are the treatments are the available and what are the prevention to control the dengue fevers. So in the later on in further study about the dengue fevers, I have to discuss about in the dengue treatment. डेंगू ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, डेंगू ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है, डॉक्टर वहाँ पे किस प्रकार से ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं। तो हम विस्तृत स्वरूप से हम पे पढ़ सकते हैं कि देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर और क्यूर एज अ डेंगू इज अ वायरस। किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डेंगू फीवर पर आज उपलब्ध नहीं है, आज अवेलेबल नहीं है। क्यूर एज अ डेंगू एज अ वायरस है, जो भी डेंगू वायरस है जो है उसे क्यूर करने के लिए किसी भी प्रकार की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर देयर इज अ पैरेलल अनदर ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। देयर इज अ व्हाट इज अ मेडिकेशन। मेडिकेशन इज अ painkillers like the Tylenol or the paracetamols are generally prescribed to the patient. मेडिकेशन में जब भी पेन किलर्स को दिया जाता है, क्योंकि डेंगू फीवर में पेन होता है, बॉडी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, हेडेक होता है, तो इसीलिए डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पैरासीटामोल्स और दी टाइलेनॉल generally prescribed to the patient, and then drips. Fourth, drips are sometimes supplemented in the case of the severe dehydration. Severe dehydration अगर पेशेंट में पाया जाता है तो वहाँ पर there is another fourth drips are sometimes are the supplemented in the case of the severe dehydration. Severe dehydration में हमें वहाँ पर ये फोर्थ ड्रिप्स को प्रोवाइड किया जाता है एज अ सप्लीमेंटेड और एज अ सप्लीमेंट्स. सो देन another treatment is a stay hydrated. This is crucial as most of your bodily fluids are lost during the vomiting and high fever. A continuous intake of the fluid, it will be make sure that body does not easily dehydrate. जब इस सिम्टम्स के जब इन्फेक्शन कॉज होता है तो पेशेंट को वोमिटिंग होती है, पेशेंट को हाई टेम्परेचर होता है, हाई फीवर होता है. इसके कारण बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड की लेवल वो कम होने लगती है. दिस इज क्यूरेसियल एज मोस्ट ऑफ आवर bodily fluids are lost. Bodily fluids are lost during the vomiting and high fever. हाई फीवर में ड्यूरिंग दी वोमिटिंग में इसका जो फ्लूइड है वो कम होने लगता है. कंटिन्यूस इनटेक ऑफ द फ्लूइड्स विल मेक द श्योर दैट
बॉडी डज नॉट इजीली डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए वहां पे क्या दिया जाता है, देयर इज अ स्टे डिहाइड्रेटेड, देयर इज अ इंटेक दी कंटिन्यूसली इंटेक दी फ्लूइड्स, पानी ज़्यादा पीना, फ्रूट का जूस पी लेना, दैट देयर इज इलेक्ट्रॉल्स को पी लेना। दीज आर दी प्रोवाइडिंग द कंटिन्यूसली इंटेक ऑफ द फ्लूइड्स टू मेक अ श्योर दैट बॉडी डज नॉट इजीली डिहाइड्रेटेड। बॉडी को डिहाइड्रेटेड होने से रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वहाँ पे वोमिटिंग होने के कारण बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड का कम होने लगता है, इसीलिए उस पेशेंट में डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होने के कारण stay dehydrated so that there is a continuously intake of fluids will make sure that body does not easily dehydrated, बॉडी इजीली डिहाइड्रेटेड नहीं हो पाएगी। इसीलिए कंटिन्यूसली लिक्विड फ्लूइड को जस्ट लाइक टू द कोकोनट वाटर्स, जस्ट लाइक टू टेक नींबू पानी भी पी सकते हैं। जिस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट होता है, नींबू में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, पानी में हम पानी का और नींबू उसमें निचोड़कर हम उसको पी सकते हैं। इस प्रकार से बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसकी कमी के कारण बॉडी में बीपी बढ़ सकता है। इसीलिए हमें इस प्रकार से बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होता है उसको रोक देना चाहिए। दैट विल बी टेक दी लिक्विड्स कंटिन्यूसली टू श्योर दैट मेक अ बॉडी कंटिन्यूसली मेक अ बॉडी फ्लूइड्स। देन डेंगू प्रिवेंशन, डेंगू को हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसे प्रिवेंट करने के लिए रिसर्चर आर स्टिल वर्किंग ऑन फाइंडिंग अ स्पेसिफिक क्यूर फॉर डेंगू फीवर। जो भी संशोधन करता है, जो भी रिसर्चर है, जो भी संशोधन कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट वर्किंग टू फाइंड आउट अ स्पेसिफिक क्यूर फॉर डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को क्यूर करने के लिए स्पेसिफिक फाइंडिंग का संशोधन जारी है। नाउ हियर देयर इज अ डेंगू फीवर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ पेन रिलीवर्स with acetaminophen. Additionally, your doctor will be recommended to you drink plenty of fluids and take a rest. डेंगू फीवर में बेड रेस्ट होना जरूरी है, टेक अ रेस्ट। पेन किलर दिया जाता है और पेन किलर रिलीवर्स दैट एसिटामाइनोफेन। जो भी मसल पेन होते हैं, बॉडी में जॉइंट पेन होते हैं, इस प्रकार के हेडेक होते हैं, जो पेन को कम करना बहुत जरूरी होता है, तो यूर डॉक्टर्स आर रिकमेंडेड दैट टू यू टेक ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड टेक अ रेस्ट। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आर टेक टू अवॉइड dehydration from the dehydration of the body, so that in this way then prevent the best way is the prevention. The best way is a prevention. Following are some actions you can take to keep yourself safe from the virus. The best way to prevention, सबसे उत्तम और उचित मार्ग जो होता है डेंगू फीवर से हमें बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए, फॉलो सम एक्शन यू कैन टेक अ कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम द वायरसेस। वायरसेस से हमें खुद को सेफ करवाना जरूरी है, सुरक्षित करवाना जरूरी है। यही उचित प्रकार का मार्ग जो है हमें प्रतिबंधित कर सकता है। हम प्रिवेंशन कर सकते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द डेंगू फीवर्स। डेंगू फीवर से हमें बचने के लिए हमें उससे दूर रहना, खुद को सुरक्षित रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार से हम डेंगू फीवर को प्रिवेंशन कर सकते हैं। अनदर प्रिवेंशन, द फर्दर प्रिवेंशन ऑफ द डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए there is another type of the prevention that is known as the lesser
स्किन एक्सपोजर, स्किन को लेस एक्सपोजर करो। एक्सपोजर करना यानी कि खुद जो भी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा ढकना चाहिए, कपड़ों से ढकना चाहिए। इसीलिए ट्राई वेयरिंग अ लॉन्ग पैंट्स, लॉन्ग पैंट को पहनना चाहिए। देन शर्ट टू कवर योर स्किन सरफेस, जो भी शर्ट और पैंट्स आप पहनेंगे तो उसे वेयरिंग करेंगे तो पूरे बॉडी को ढकना चाहिए। दैट विल बी कवर द होल बॉडी एंड रिड्यूस द चांस ऑफ बाइट्स ऑफ मस्कीटो। मस्कीटो को बाइट का चांस नहीं देना चाहिए। दैट विल बी रिड्यूसिंग द चांस ऑफ बाइट्स। मस्कीटो आर हाईली एक्टिव easily in the morning and evening, so try avoiding the venturing out of these times, wandering out in these times। इस प्रकार से मस्कीटो जो भी है हाईली एक्टिव कब होते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, और इवनिंग में हाईली एक्टिव होते। उस समय हमें टू ट्राई टू अवॉइडिंग वेंचरिंग आउट इन दोज टाइम, इन दिस टाइम में, इन दोज टाइम में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे बचने के लिए हम इस प्रकार से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। देन द अनदर एंड फर्दर प्रिवेंशन इज द मस्कीटो रिपेलेंट। मस्कीटो रिपेलेंट in the mosquito repellents, a repellent with at least 10% concentration of the diethylamines, that is known as the DET, diethyltoluenomide. A higher concentration is needed for the longer exposures. You can apply the ointment daily to keep the mosquito away. हम जब भी मस्कीटो रिपेलेंट का यूज़ करते हैं तो मस्कीटो रिपेलेंट विच आर दी नॉट बाइट टू दी स्किन टू यू, सो दैट दिस रिपेलेंट विथ एट लीस्ट 10% concentration of the diethyltoluenomide, that is known as the DEET. A higher concentration is needed for a longer exposures. You can apply the ointment daily to keep the mosquito away. अपने शरीर पर, अपने त्वचा पर हम ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। मस्कीटो रिपेलेंट भी हम जहाँ अपना बेडरूम है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। Then these are the prevention to keep your body from the mosquito, then keep mosquito away from you, so that these are the very essential prevention to mosquito repellent which are the use, and you can apply the ointment daily to the keep the mosquito away, so that in this lesser skin exposure and the mosquito repellents which are the use in the dengue fever prevention. So in the after the dengue fever prevention, that will be goes to the further prevention, and that further prevention is the known as the that is in the further prevention there is a personal hygiene. Personal hygiene when you are infected with any viruses. अगर आप कोई भी वायरसेस से अगर इन्फेक्टेड है, you are extra sensitive to other illness. Use hand sanitizers like Dettol, liquid hand wash, which acts to keep the germs at by. This liquid soap will protect you against the many illness causing germs. Personal hygiene is a very important to regard prevention to the any type of the diseases.
when you are infected with any viruses, you are extra sensitive to other illnesses. दूसरों को जब इसका स्प्रेडिंग होता है तो आपको खुद को पर्सनल हाइजीन होना और पर्सनल हाइजीन लेना बहुत जरूरी होता है. यूज हैंड सैनिटाइजर. हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए. हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए. लाइक अ डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश which acts to keep the germs at bay. This liquid soap will protect you against the many illness causing the germs. So in the next and further dengue prevention, that is known as the disinfect the stagnant water. स्टैग्नेंट वाटर को डिसइंफेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है. द एडेज मस्कीटो ब्रीड्स इन क्लीन एंड स्टैग्नेंट वाटर. जो एडेज मस्कीटो जो होती है दैट विल बी ब्रीड्स एग्स इन अ क्लीन एंड स्टैग्नेंट वाटर. क्लीन वाटर में स्टैग्नेंट वाटर में उसका दैट विल बी lay the eggs. Keep water covered it at all times and use a proper disinfect if necessary. Turn over any vessels which can be accumulate waters. Scrub the surfaces thoroughly so as to reduce the chances developing a breed ground for the mosquitoes. वाटर को जो भी स्टैग्नेंट वाटर होता है, कीप वाटर कवर्ड एट ऑल टाइम्स. वाटर को कवर करना चाहिए. एंड यूज अ प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट का उपयोग उस वहाँ पर करना चाहिए. इफ नेसेसरी टर्न ओवर एनी वेसल्स विच कैन एक्यूमुलेट अ वाटर. जहाँ पर भी पानी जमा होता है वहाँ पे एक्यूमुलेटेड होता है. स्क्रब दी सरफेसेस को स्क्रब करना चाहिए thoroughly so as to reduce the chance developing a breed ground for the mosquitoes. Then these are the very important prevention to regards to dengue fever, so that I have to suggest all the students and all the viewers to keep your body and take a personal hygienes, disinfect the stagnant waters, and there are the number of the use the mosquito repellents, and so in this way you can prevent dengue fevers. So that all the students, I have to request the keep your body away from the mosquitoes, so that these are the in the RBC Online's I am deliver the new aspect in human health and diseases, that is known as the dengue fever. So I have to request to subscribe my channels and like my channels, and when you like my videos, then new and next video is coming shortly on the my YouTube channels. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.